Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new topic. Actually, it is extension of the previously done topic on literature review, writing objectives, understanding objectives related to the research topic, research title, and so on. So, in today's lecture, which has actually three parts, which has been divided into three parts. In the first part of the lecture, will be doing research gap. So what is research gap and how the research gap should be completely mapped with title of research. So iska as an example, I will be sharing with you a title empirically analyzing the factors affecting investment decision making in Pakistan. Here you can find here. This is the title actually. Um, this is the title on which the research has already been conducted by one of my students. तो इसको लोग कॉपी भी करते हैं, लेकिन आपको भी कहीं कॉपी नजर आती है तो काइंडली इसको हाईलाइट करें और पॉइंट आउट करें, क्योंकि इस पे कोई एटलीस्ट आई रिमेंबर विद डिफरेंट डायमेंशंस 3 to 4 students have done their thesis under my supervision. So this will be the topic, and our discussion actually, as I mentioned earlier, today's discussion will be in three parts. In first part of discussion will be relating research gap with the title research topic. In second part, inshallah, we'll try to relate research objectives with the research title. And in third part, we will discuss the research questions and how precisely research questions can be stated, related, and mapped with the research objectives and research gap and title of research. So let's start first part of our discussion, research gap. What is research gap? Very briefly, research gap is actually the dimensions missed out in the previous literature related to your topic, everything related to your topic of research, topic which you have chosen, the topic which you are interested in. So any missed out dimension, for example, 2 variable, 3 variables discuss हुए हैं previous studies में, actually they should have been more. तो आप by adding more dimensions, which means more variables, तो आप अपनी research को expand कर सकते हैं, तो you find a gap in terms of dimensions. दूसरी बात ये होती है कि मुमकिन है एक टॉपिक जो पाकिस्तान में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में नहीं हुआ है, बट इट हैज बीन वाइडली एंड एक्सटेंसिवली इंटेंसिवली डन related to the advanced countries. But Asia being now the emerging economies, there is need to discuss or there is need to conduct research on that particular area. तो वो भी एक गैप हो सकता है. तीसरा जो गैप which you can identify is in terms of methods, methodology, statistical technique. For example, previous studies, if have conducted their research and they have employed very basic level methods, which may not be useful in giving a very constructive outcome or output for the guidance of the policy makers, managers of the businesses, the beneficiary, the possible beneficiaries, stakeholders of the topic or the area. तो फिर आप कोई ऐसी अच्छी एडवांस टेक्निक कोई एम्प्लॉय करके उससे अच्छे रिजल्ट निकालना चाहें, तो दैट कैन आल्सो बी आइडेंटिफाइड एज ए रिसर्च गैप. तो इस तरीके से आप रिसर्च गैप कर सकते हैं. पीरियड वाइज भी हो सकता है, तो लिहाजा मेथड में हो सकता है, डायमेंशंस की शक्ल में हो सकता है, या कोई इंडस्ट्री या एरिया which actually remains uncovered या unaddressed in the previously conducted research. तो आप उसको टेकअप करके आप बिल्कुल रिसर्च कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आज के इस फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन हम excuse me, we will be focusing on empirically analyzing the factors affecting investment decision making in Pakistan. तो इससे जो हमें टॉपिक को देख के ये लगता है एम्पिरिकली एनालाइजिंग, इसका मतलब ये है कि एक तो ये एम्पिरिकल रिसर्च होगी, यानी इसमें डाटा आएगा, उसका एनालिसिस करना होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होंगे,
कोई सॉफ्टवेयर या मैनुअली या कैलकुलेटर पे कुछ ना कुछ करना होगा जब डाटा आएगा। दूसरा इसमें एक चीज है कि फैक्टर्स, एनालाइजिंग द फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये है कि कुछ फैक्टर्स होंगे, कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका इम्पैक्ट होगा ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, और ये कहाँ पे होगा, ये पाकिस्तान से रिलेटेड, यानी ये स्टडी जो है ये पाकिस्तान से रिलेटेड है, नंबर 1। नंबर 2, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। एंड नंबर 3, इसमें फैक्टर्स एक्सप्लोर करने हैं, कौन से फैक्टर्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। इसको फर्दर भी इसमें कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फैक्टर्स की बात हो रही है तो कौन से फैक्टर्स किस एरिया के, क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या प्योर फाइनेंशियल फैक्टर्स या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, या कौन से, फर्दर भी इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। लेकिन गिवन द स्कोप ऑफ दिस टाइटल, अब हम रिसर्च गैप की तरफ आते हैं। तो देखें इसका जो पहला फर्स्ट पैराग्राफ, और फिर मैं उसमें बताऊंगा कि कैसे इसमें कोई क्या गैप है और क्या हो सकता था फर्दर। तो मैं रीड करता हूँ। पाकिस्तान has turned into the focal point of worldwide consideration as far back as the World Bank 2000 characterized it as one of the developing markets and economies of Asia. तो एक गैप की, उस गैप को आइडेंटिफाई करने की एक इम्पोर्टेंस बताई गई है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है, और वर्ल्ड बैंक ने 2000 की अपनी रिपोर्ट में एशिया की इकोनॉमीज के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान को कैसे फ्लैश पॉइंट पे लेके आया। Consequently, उसके नतीजे में फिर we have to perceive how behavioral finance theories apply to this emerging market. अब यहाँ पे behavioral finance theories का जिक्र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो ऊपर टाइटल है उसमें जो behavioral factors होंगे वो इस स्टडी का हिस्सा बनेंगे, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ जिक्र करने का मकसद ये हो सकता है कि शायद पाकिस्तान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के एरिया में बिहेवियरल फैक्टर्स को ज्यादा कवर नहीं किया गया, तो ये एक गैप हो सकता है। इसको ज्यादा और भी क्लियर किया जा सकता था, लेकिन स्टूडेंट ने यहाँ पे बहरहाल उसने अपने स्टाइल में आगे फिर जाके लिखा। Does the behavioral factors play a role in the investment decision making? अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में बिहेवियरल फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अंडरटेकिंग के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए, या इन्वेस्टर्स का जो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, उनको या पोटेंशियल इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए। So in this investigation, we are investigating in detail how Pakistan financial specialists are influenced by behavioral factors such as, यहाँ उनको क्लब करके कि रिलीजियस, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, और ये इनको इंटरनल फैक्टर्स कहा गया है। यानी बिहेवियरल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं। तो इस स्टडी में ये जिक्र करने का मकसद ये है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, रिलीजन रिलेटेड यानी फेथ से रिलेटेड फैक्टर्स, और कॉग्निशन, जो इन्वेस्टर की अपनी कॉग्निशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फ्यूचर के बारे में या पास्ट डाटा के बारे में या हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में, उनकी जो अपनी थिंकिंग है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका बिहेवियर है, उससे रिलेटेड जितने फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको इसमें कारपोरेट करने की जरूरत है, जो शायद नहीं किया गया है। आगे ये बताएगा। Also, there is need to investigating the role of external factor, यानी अब यहाँ पे दोनों फैक्टर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल में कौन कौन से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, गवर्नेंस, एथिकल, एनवायरमेंटल इन नेचर। अब ये वो फैक्टर्स हैं जो एक इन्वेस्टर के अपने कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए इनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा गया है। अब आगे एक समरी के तौर पे ये नीचे ज्यादा क्लियरली और फिर उससे आगे और ज्यादा क्लियरली गैप को बताया गया। द बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर with respect to the decision making in countries like UK, USA, Canada, China and India have been conducted with their emphasis on similar factors। जहाँ पे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है इन द सेंस कि ये बताया जा रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स के बारे में स्टडीज ऑलरेडी एडवांस कंट्रीज में हो चुकी हैं, और इंडिया में भी कुछ ऐसी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म की स्टडीज नहीं हुई, तो लिहाजा ये एक गैप आइडेंटिफाई कर दिया। आगे चल के the primary data always dependably give
एंड एंगेजिंग। अच्छा ये ज्यादा, ये इसमें हिंट्स हैं रिसर्च गैप के, बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं बताया गया। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करते हुए क्लियरली भी कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल क्लियरली कैसे लिखना है। तो लिहाजा यहाँ मैंने बताया, ये मैंने इंटेंशनली वहां से कुछ सेंटेंसेस डिलीट कर दिए हैं ताकि आपको समझा सकूं कि आप जब लिख रहे हो तो आप काइंडली सिर्फ ये ना मेंशन करें कि ये स्टडीज यूके यूएसए में इस किस्म की हुई हैं। आप बताएं कि क्या पाकिस्तान में नहीं हुई, क्या पाकिस्तान जैसे और मुल्कों में नहीं हुई, क्या पाकिस्तान में हुई है तो एक स्मॉल सैंपल पे, स्मॉल स्केल पे हुई है, लार्ज स्केल पे करने की जरूरत है, या कुछ एरियाज अभी तक अनएड्रेस अनटच हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये इस तरह से इसको गैप को आइडेंटिफाई हम करते हैं। अब इसमें सबसे आखिरी पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, द प्राइमरी डेटा ऑलवेज डिपेंडेबली गिव एन एंगेजिंग एक्सटेंशन टू द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाइड विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। अच्छा मैं यहाँ पहले रुकता हूँ, आपको समझाऊं कि इसमें गैप किस तरह से बताया जा रहा है। इसमें गैप इस तरह से बताया जा रहा है कि प्राइमरी डाटा है, यानी जो भी आप क्वेश्चनएयर इंटरव्यू के थ्रू डाटा इकट्ठा करते हैं, वो हर दफा हर सैंपल के साथ कुछ ना कुछ नई इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया एडिशन, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन सामने आती है। तो लिहाजा एक गैप, रिसर्च गैप के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई, कम हुई हैं, तो प्राइमरी डाटा जब भी आप इकट्ठा करते हैं तो उसके अंदर ये गुंजाइश होती है कि नए रिस्पॉन्सेज आए। फॉर एग्जांपल आपकी सीनियर जो स्टूडेंट्स थे, उनसे अगर हम डाटा इकट्ठा करें किसी एक खास टॉपिक के ऊपर और आपसे करें, तो यकीनन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई नई बात जरूर आएगी। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी डाटा से रिलेटेड ये स्टडी है, तो लिहाजा इसमें बिल्कुल गुंजाइश है कि कुछ नई चीजें सामने आए जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर रही हों। तो ये भी एक गैप बताने का तरीका है। तो इन्वेस्टर्स एटीट्यूड, आगे इन्वेस्टर्स एटीट्यूड चेंजेस, आगे मैं फर्दर इसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ कि ऐसे क्यों होता है कि प्राइमरी डाटा में हमेशा गुंजाइश क्यों होती है कि नई बात कोई ना कोई सामने जरूर आएगी। तो इन्वेस्टर्स एटीट्यूड चेंजेस, ये उसकी रीजन बताई जा रही है। इन्वेस्टर्स एटीट्यूड चेंजेस विद द चेंजिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस। एक्सक्यूज मी। तो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, पॉलिटिकल कंडीशन बदल जाती हैं, इकोनॉमिक प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, पॉलिसी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, तो उसी लिहाज से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में भी फर्क आता है। तो लिहाजा अगर कोई स्टडीज आज से 5 साल पहले हुई हैं, तो आज 2.5 साल, 3 साल, 5 साल के बाद जो कंट्रीज कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वो चेंज में आ गए हैं, वो तब्दील हो गए हैं। तो so will be the case with the behavior and the attitude of the investors। उनकी डिसीजन मेकिंग भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान से कहीं बाहर किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। उसकी जाहिर है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत रोल प्ले करती हैं, तो उनका इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है और इस स्टडी के लिए वो बहुत यूजफुल हो सकती हैं, उनकी फाइंडिंग्स, उनके रिस्पॉन्सेज। तो इन केस ऑफ चेंजिंग द पॉलिटिकल, आगे ये बताया गया है इसी बात को, लेकिन बहुत क्लियरली और भी बताया जा सकता था। In the case of changing the political and economic situation, the dynamics of stock market। अब यहाँ क्लियरली बताया गया है कि ये स्टडी जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी, यानी ऐसे इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्टॉक मार्केट के स्टेक होल्डर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में होगी। कौन से मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स? जैसे इंटरेस्ट रेट, मनी, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी। वेरी कंटिन्यूसली ये बताया गया है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन, ये दोनों आपस में हैंड इन हैंड जाते हैं। जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती हैं, तो इन पॉलिसी मेजर्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर भी तब्दीली आती है। तो एक लिहाज से ये गैप के तौर पर लिया जा रहा है। सो डिपेंडेबली देयर इज curiosity in investigating changing investment decision on account of demographic characteristics of the respondents in addition to the internal external factors described earlier। अब यहाँ पे एक और नई बात भी कही जा रही है, क्या कि शायद पिछली स्टडीज में डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेस्टर्स को नहीं लिया गया। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे एजुकेशन कैटेगरीज,
में जो लोग फॉल करते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन, जेंडर, मेल फीमेल हो गया, इसी तरह उनकी इनकम कैटेगरीज हो सकती हैं, इसी तरह उनके जो बिलोंगिंग, फॉर एग्जांपल समवन may belong to रूरल एरिया या अर्बन एरिया या इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह के शहरों के भी डेमोग्राफिक चेंज होने से इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे असर पड़ता है। तो अब इन शॉर्ट इसमें गैप क्या आइडेंटिफाई किया गया है? नंबर 1 कि एडवांस कंट्रीज में रिसर्च हुई है, लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमीज में और खासतौर पे पाकिस्तान में ज्यादा रिसर्च नहीं हुई, तो लिहाजा पाकिस्तान में इसकी स्टडी करने की जरूरत है। फर्ज करें मैं एक एडिशनल कुछ आर्टिकल मुझे मिल जाते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, तो फिर मैं एक सेंटेंस ऐड करूंगा कि जो स्टडीज पाकिस्तान पे हुई हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डायमेंशन कवर नहीं की, यानी इंटरनल एक्सटर्नल की कैटेगरी, फैक्टर्स की कैटेगरी को अलग से इस तरह से नहीं लिया गया, इनको अलहदा से लेना है। इसी तरह तीसरा जो बताया गया है कि शायद अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का एनालिसिस नहीं किया गया, तो यहाँ पे उसका एनालिसिस करने की जरूरत है। लेकिन ये इसी तरह क्लियरली जैसे मैं बता रहा हूँ, जब हम लिखेंगे 1 2 3 करके, तो ये रिसर्च गैप है। तीसरा, यहाँ पे एक और चीज जो ऐड हो सकती थी कि एक और जो चीज ऐड हो सकती थी वो नहीं, कि प्रीवियस स्टडीज ने नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि जब डेमोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं तो नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि प्रीवियस स्टडीज ने शायद कंप्लीटली नहीं किया, और यहाँ पे हम करेंगे तो ये भी रिसर्च गैप होगा। इसी तरह 5वें नंबर पे रिसर्च गैप के फर्ज करें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, यानी क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो इसकी कोडिंग करके यानी 0 1 या 1 2 की कोडिंग करके जब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है तो इस पे एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक मेथड्स या टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं, तो ये भी एक रिसर्च गैप के तौर पे आइडेंटिफाई हो सकता है। तो ये जो 4-5 मैंने बताए हैं, ये वो एरियाज हैं जिनको हम रिसर्च गैप कहते हैं। तो हमारे इस डिस्कशन के फर्स्ट पार्ट में इतना ही। तो इंशाल्लाह बाकी क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि आज की हमारी डिस्कशन के 3 पार्ट्स हैं, तो और 3 ही एरियाज हैं। नंबर 1 इन फर्स्ट पार्ट we will try to relate research gap with the research topic, सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च टॉपिक, और तीसरे में रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च टॉपिक। तो सो फार इतना ही। तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को रिलेट करेंगे अपना रिसर्च टाइटल और रिसर्च टॉपिक के साथ। तो thank you very much. If you have any question, you may ask in the start of the second session.